समीर भाई ने ये कहा था कि यार तेरे बगैर जीतने से बेहतर है कि हम तेरे साथ हार जाए। और फिर ऑब्वियसली धोनी की जो अपनी वहाँ पे फैन फॉलोइंग है. हम लोगों ने तो सुना था, लेकिन जब आपने उसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया then you say yeah. Do you believe that Babar Azam is the biggest talent Pakistan has produced in the last many years? Not a cricketer, but आज जो हमारे गेस्ट हैं पॉडकास्ट पे, he is none other than Sikandar Raza. He is the first overseas guest that we have welcomed on our podcast. He's also the first active captain that's coming onto our podcast. He almost became a fighter pilot, but destiny had other plans for him. लेकिन most importantly, क्योंकि वो इतनी franchise cricket खेल रहे हैं, उनकी अगर आप टीम्स की लिस्ट देखें तो वो लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती है. एंड बिकॉज ही एड्स दैट फ्रेंचाइज एक्सपीरियंस, ही इज़ प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, still going strong. He talked about his time at the IPL as well, especially representing Punjab Kings. He of course talked about that final, that PSL final. ऐसा क्या कहा उनको समीन राणा ने कि वो फ्लाइट पे बैठ के फाइनल खेलने के लिए सिर्फ पाकिस्तान वापस पहुंचे. And I'm not going to reveal too much because I want you guys to enjoy our conversation. Here's talking to Sikandar Raza. Hello, Assalamu alaikum, Sikandar. Thank you so much for being with us on the Ultra Edge podcast. सबसे पहले I really want to thank you for taking the time out because we understand कि कितना busy time है for someone like you. You've just flown in and it's a busy season looking ahead at the PSL. So thank you for taking the time out. pleasure to be here. Thank you for having me. Excited for our chat today because I was researching and I was trying to get to know more about you beyond just the player that you are. तो हम एक तो cricket field पे देखते हैं आपके contributions वगैरह, but very few people know, especially like your fans back in Zimbabwe and your very very dense fan base in Pakistan. They also want to know who you are as a person, and I know कि हर किसी के लिए आसान नहीं होता to share and to give access to that part of themselves. But I really want to understand सिकंदर के आपकी beginning Pakistan से हुई. You were born in Sialkot and then you went on to live in Zimbabwe. How important were those early years in Pakistan to develop that passion for cricket? Early days, I didn't think I had the passion for cricket because I come from a family जहाँ पे ज़्यादा लोग educated नहीं है for various reasons. I come from a very humble family. So उस टाइम ये था कि everybody was working. तो उस टाइम यही डिसाइड हुआ था, अल्लाह जन्नत दे मेरे दादा अबू को, ही डिसाइडेड अलॉन्ग विद माई दादी माँ के नेक्स्ट जनरेशन विल बी एजुकेटेड. कुछ भी हो जाए हमने अपनी अगली नस्ल को पढ़ाना है, आई एम द फर्स्ट बॉर्न. सो वो शुरू से बस मुझे पढ़ाई का था. क्रिकेट वॉज अ वीकेंड स्पोर्ट, वो भी इसलिए कि मेरे वालिद साहब खेलते थे अपने दोस्तों के साथ, उसके बाद मेरे सबसे छोटे चचा थे वो खेलते थे अपने दोस्तों के साथ. अच्छा. सो दैट वाज दैट, यानी कि वाज अ वीकेंड स्पोर्ट फॉर मी. हॉबी थी आप कह सकते हैं. And that's where the interest might have developed, but I don't think so the passion developed. तो आपके जो फादर और आपके अंकल्स वगैरह ये खेलते थे किस लेवल पे? वर दे लाइक इन एनी क्लब या ये बस आपस में ही पहले तो क्रिकेटिंग कल्चर काफ़ी ज़्यादा था बिकॉज स्पेस ज़्यादा थी और मैचेस ज़्यादा थे. एंड देन इस मोहल्ले की टीम उस मोहल्ले से खेलेगी, सो दैट्स अ राइवलरी और ऐसे और वैसे और ब्रैगिंग राइट्स. तो वो एक गली क्रिकेट में टर्म है ना, प्राउं पिदा, मैं वो था. बट द ओनली सैड पार्ट वाज कि मुझे सिर्फ फील्डिंग कराते थे बिकॉज आई वाज वेरी यंग. लेकिन शायद उससे मैं फील्डिंग सीख गया थोड़ी बहुत करनी. सो दोज आर द अर्ली मेमोरीज. लेकिन जब चचा की टीम खेलना स्टार्ट हुई देन मुझे बैटिंग बॉलिंग थोड़ी बहुत दे देते थे. थैंक यू चचा. चचा की टीम, शाउट आउट. सो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड. So this was all happening in Sialkot, right? Sialkot, That's where your roots are. तो आप कभी भी frequently जाना होता है Sialkot जब आप आते हैं? So alhamdulillah to PSL once a year तो हो ही जाता है. ज़बरदस्त. Because I think मेरा international calendar और franchise calendar इतना busy रहता है कि मुझे वक्त नहीं मिल पाता. मुझे जिम्बाब्वे रहने का वक्त नहीं मिल पाता, so Sialkot थोड़ा tough हो जाता है. But thank you to PSL. Thank you to shout out to Lahore Qalandars for picking me. कि मुझे उनकी वजह से वक्त मिल जाता है कि चले मैं उनको देख लेता हूँ, मिल लेता हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ. ज़बरदस्त. एंड आपका मैं आई वाज गोइंग थ्रू सम ऑफ योर कंटेंट जो आपके इंटरव्यूज़ वगैरह थे, एंड यू मैंशन दिस अगेन एंड अगेन कि आपके फादर ने आपको 1 साल
दिया था कि क्रिकेट में कुछ करना है तो 1 साल है, अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो. Did that ultimatum sort of push you to give your best and be your best version in cricket? I think now I relate back to Pakistan again. जो PF की मेरी ट्रेनिंग थी, so I felt like ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मैं एक फाइटर पायलट नहीं बन सका, but those 3 years at PF Lothopa, I think that got me physically, especially mentally, really strong. तो जब वाले साहब ने कहा कि 1 साल है, और वो साल मुझे तब मिल रहा था जब I was in Scotland in 2008 and 9, मेरा BSc complete हो रही थी, and he said do MSc, and I said really I want to try cricket for a year. तो कहते हैं चलो you only have a year, अगर Okay. if nothing works out तुम अपना MSc complete करना in computer sciences masters, and then अगर आपने खेलना तो उसके masters के बाद खेलना. Oh. So that was, and that 1 year maybe unintentionally है मुझे How old may- were you उस टाइम पे? 2009 20 what 24 20 Right. yeah 23 24. उस So time- मैंने कोई एज ग्रुप नहीं खेला. I never played any under 16s, under 18s, under 19s. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खेला because I was just studying. अच्छा, आपने अभी बात की ना कि वो 1 साल वो उसमें you were pushed to just be the best version, कि उसके बाद फिर मास्टर्स था and then क्रिकेट को आप गुड बाय ही कह देते. बट do you remember when you think about it a point in time where you thought अच्छा cricket is no longer something I just do on the weekends, it's a possibility कि अब मैं इसको प्रोफेशनली परस्यू कर सकता हूँ कि hey I'm that good. No. ये तो अभी भी नहीं आया मेरे दिमाग में. Hey, I'm that good. जैसे स्पाइडरमैन मूवीज में सबसे पहले उसके अंदर से वेब निकलता है and then he is also shocked कि ये I tell you मैं who was हूँ. shocked. Roha, I tell you who was shocked. So ये मेरे दिमाग में तो नहीं आया कि हाँ कि 1 साल है और opportunity and this and that कि I can do it or I'm that good. ये कभी भी नहीं आया. लेकिन I remember my debut for Southern Rocks, जब मुझे first breakthrough मिला franchise cricket, which is domestic Zimbabwe franchise cricket, Southern Rocks, and I scored 76 of 49. Wow. I tell you who was shocked, my dad. वो कहते हैं कि यार मुझे लगा तुझे चांस मिला है, तू ओपन जा रहा है, तेरे से बॉलिंग खेली नहीं जाएगी, तू आउट हो गया, एंड सडनली यूल रैप इट अप. Wow. तो कहते हैं मुझे नहीं था यकीन कि तू रन्स करेगा. सो आई थिंक माय डैड वाज शॉक्ड. अच्छा सिकंदर, when you were young and उस टाइम पे आप क्रिकेट खेल रहे थे, ट्रांजिशन कर रहे थे फ्रॉम पाकिस्तान टू जिम्बाब्वे, इन दैट पीरियड बिफोर यू इवन मेड योर डेब्यू, आपके क्रिकेट के रोल मॉडल्स कौन थे ग्रोइंग अप? हु वर द प्लेयर्स यू लुक्ड अप? जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट उस टाइम, बिकॉज आई वाज इन पाकिस्तान, सो हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करते थे. बिलीव इट और नॉट, बीइंग अ राइट हैंडर, मेरे जो फेवरेट थे वो लेफ्ट हैंडर थे. अच्छा. वो सईद अनवर थे. ओह. सो आई वुडंट से कि वो मेरे रोल मॉडल थे इन अ वे कि मैं क्रिकेट वाज जस्ट टू वॉच एंड एंजॉय, क्योंकि सारी फैमिली देख रही है एंड एवरीबॉडी इज इमोशनल. लेकिन मुझे उनको देख के मज़ा आता था. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम हिम, जो मेरी अर्ली मेमोरीज है. Did you start as an opener like in your Yes, early yes, years? yes. I was Okay. an opener. Zabardast. Even my debut for Zimbabwe cricket was at 3. Then I got next series में मुझे open कराई गई, and then I remained an opener for काफ़ी time के लिए, and then I came back to 4 and 5. आप क्या enjoy करते हैं? जीतना. As simple as that. Period. जीतना and सीखना. That's it. फिर भी कोई तो preference होगी कि None, honestly, at what no. time in the game do you think कि it's more ideal for someone like you to go in, या personally आप क्या enjoy करते हैं? Do you like to have more time in the middle, या जाके बस छिश काम ख़त्म finish करके? No. अभी आप ये मैं कह सकता हूँ कि for Zimbabwe हम लोग ऐसा करते हैं. For example, after power play हम Yeah. देखते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है. इफ इट्स अ लेफ्ट आर्म स्पिनर और 2 लेफ्ट आर्म है, ये लेग स्पिनर है, देन हम लोग रायन बल को कहते हैं ओके आफ्टर 7 तू चला जा. अदरवाइज अगर उनके पास ऑफ स्पिनर्स हैं और फास्ट बॉलर्स हैं, देन आई विल से कि यार मैं खुद जाता हूँ. सो अगर आपने वर्ल्ड कप देखा तो यू विल सी कि आई बैटेड एट 3, आई बैटेड एट 4 एंड आई बैटेड एट 5. सो अगर मेरा कोई प्रेफर्ड वाकई ही में पोजीशन होती, आई वुड हैव गॉन देयर, स्पेशली बीइंग अ कैप्टन ऑफ द टीम, बट आई डोंट. इट इज़ व्हाट माय कंट्री और माय टीम नीड्स दैट वुड गिव अस द बेस्ट चांस टू विन. That's my position. Do you think T20 फॉर्मेट में ये बहुत ज़रूरी होता है for batters to have a set number, या do you think कि ये इतना set in stone नहीं है and things can go up and down in T20 cricket? I think आपका टॉप ऑर्डर का स्टेबल होना in my opinion ज़रूरी है. जैसे 1 2 3, ठीक है. 3 भी to some extent, हाँ. 3 भी to some extent कि there is a cut off time for him. Yeah. Otherwise no. नहीं. But I think 1 2 3 का स्टेबल होना टीम के लिए बहुत ज़रूरी है. राइट. एंड सिकंदर, आपकी एसोसिएशन ऑब्वियसली एक तो बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड इन पाकिस्तान, फिर आपका डेब्यू भी पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ इन 2013. उस टाइम पे
at that point in your career, That's what was Test it cricket, right? like? Yes. Yes. What was it like making your debut against Pakistan? And उस time का उनका जो attack था उसमें there was Ajmal, there was Junaid Khan, Rahat, Rahat Ali, Abdurrahman, Abdur Rahman, Yunus Yunus Khan Yunus also. भाई ने भी कुछ overs किए थे. Yeah. कैसा था वो experience? You've been seeing these players, especially the likes of Ajmal and Yunus Khan, इतने time से वो खेल रहे हैं. कैसा experience था? So Rohan, the good thing is कि मैं वो टेस्ट मैच खेल ही नहीं रहा था. The good thing. The good thing is, so How? basically मुझे बता दिया था कि मैं नहीं खेल रहा. अच्छा. So वो होता है ना, एक रात पहले आपको बता देंगे you're playing tomorrow, so ठीक है. you might not sleep, you might get butterflies in the stomach, you're maybe anxious, you're nervous, you're full of energy, whatever. So I wasn't playing, I was not supposed to be playing. Okay. So I got to the ground और मैं बड़ा casually आया with slops on and warm up पे, and I see कि कुछ जो हमारे batters थे they like to do throwdowns before the official training starts. तो coach थोड़ा panic में था, so he called me over. So I said, is everything okay? And he said, you're playing today. I said, why? And he said, because Brendan Taylor was in the hospital because it was the birth of his first child. So Okay. he's exhausted. Okay. Makes sense. So Brendan didn't play and I slide in for him at number 4. So मेरे पास अगर excitement का या कुछ सोचने का, मैंने तो homework भी नहीं किया था. I didn't watch any of the footage और ये वो. अगर वो time था तो वो net से change room का था, which is what, 100 feet? That's it. Wow. So that's why यानी कि वो, that was it. Wow. That was it. Oof. That must have been really like nerve wracking. और उस time पे मतलब again कोई तो time ही नहीं बचा फिर for you to even feel nervousness. Yeah. तो They फिर were- what was it like when you walked down in the middle, when you were facing those deliveries? क्या चल रहा था उस वक्त mind में कि this is international cricket, this is happening? Bro, I actually think कुछ भी नहीं चल रहा था. इतना dramatic नहीं होता या सिर्फ वो टीवी पे देख रहे होते तो लग रहा होता है? होता है. I mean, I can assure you when you put on a jersey या आप cap को receive करते हैं, in that small time I can tell you majority if not all cricketers का flashback होता है. From the time he started, the disappointments, the injuries, the rehabs, time away from family, losses in families. एक flashback in 5-6 points में कुछ ना कुछ ज़रूर आता है सामने कि all the sacrifices I did, this is what it means, this is the end, this is the reward for it. And then उसके बाद फिर आपका अगला जर्नी स्टार्ट हो जाता है, I need to be there, I need to do this. तो ये सब कुछ चलता है. ये वो क्रिकेटर्स झूठ नहीं बोल रहे, सच बोलते हैं. As soon as you're about to receive a cap, कभी कभी तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, जब जो आपको कैप दे रहे होते हैं वो स्पीच भी करते हैं, बेस्ट अब वो बोल रहे हैं लेकिन आप सुन रहे हो पर आप सुन नहीं रहे, because दिमाग में all those flashbacks, वो सब कुछ चलता है. When you look back at that time in your career, when you were trying to get that spot in the national side, do you think that you at some point had to work extra hard because you came from the outside, you didn't have a lot of, as you said, na age group cricket hai, na us tarah se koi experience. Did you think you had to work extra hard to prove that you belonged? So I didn't have to work extra hard to prove that I belong. I just have to work extra hard. There was nothing to prove. Why? Because Zimbabwe accepted me who I am, where I'm from, what I bring to the table. So Zimbabwe cricket, majority of the cricketers, especially the people of Zimbabwe, वो जो ground में आते हैं and watch us, and they accepted me who I am. So I didn't have to prove to anybody. I just had to work hard, and the rest will fall into place. I was an outsider. They didn't make me feel like an outsider. जब मैं cricket खेलना start, when I started playing cricket, they did not make me feel like an outsider. At the start, they were like, "Who's this guy?" Da da da. But once you start doing well in club cricket, and if you when I got picked for franchise cricket, and the numbers were coming and the performances, they never made me feel like an outsider. And the current generation doesn't even know that I'm born outside. They see me as one of them. Absolutely. You're associated with this Zimbabwe side now. You've obviously that captaincy role that you've stepped into has made all of the players in this side come together so beautifully कि देख के लगता ही नहीं है कि at any point there was a time when Sikandar Raza was not part of this Zimbabwe team. Like it's become synonymous now. उस point तक आपने अपना career अभी पहुंचाया है. But
अभी राइट नाउ बिकॉज अभी रिसेंटली हमने वर्ल्ड कप भी देखा है जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ऑफ कोर्स जिम्बाब्वे हैज़ बीन अ बिग टीम वी हैव सीन व्हाट दिस टीम इज़ केपेबल ऑफ बट यू थिंक अभी ये रिसेंट जो वर्ल्ड कप था एंड सुपर 8 एंड देन ऑफ कोर्स बीटिंग ऑस्ट्रेलिया एट दैट स्टेज हैज़ समवॉट finally changed the way people perceive Zimbabwe cricket? I don't know. You tell me. Okay, I don't know. Has your opinion been changed by Zimbabwe cricket? Absolutely. So then it has changed. So I mean, ये तो अब लोग ही बता सकते हैं if their opinion has changed by Zimbabwe, how they perceive. I don't know, because Roha, when I finish the game, I like to switch off. Switch off in a way that I be home. I'll just be Sikandar, a son, a father, a husband, Yeah. a brother, a cousin. So I try and do justice to those roles rather than कि मैं ये सोचूं यार लोग क्या कह रहे हैं, did we do well. हाँ, जब टूर्स पे होते हैं तब हमारे पास क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है, then I might catch up on क्या हो रहा है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है. और जब मैं घर पे होता हूँ अगर टाइम मिल जाए देन आई ट्राई एंड लर्न कि दुनिया में क्या हो रहा है, ना कि मेरी ज़िंदगी में या जिम्बाब्वे क्रिकेट और व्हाट के बाकी के लोग क्या कह रहे हैं. सो रोहा, अगर आप I'm कह रहे sure हैं there are people, I mean, इस वर्ल्ड कप पे भी हमने देखा, उससे पहले 2022 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जब जिम्बाब्वे ने हराया, there have been a number of instances जहाँ पे जिम्बाब्वे definitely एक तो punched above their weight, but even this phrase now doesn't do justice to this team because ये आप तब कहते हो जब एक बड़ी कोई weak team होती है, you say they punched above their weight and they delivered and it's an upset, but एक तो ये format इतना like it's such an equalizer, you know, it's such a इसमें आपकी हिस्ट्री, आपका रिकॉर्ड, आप कौन सी टीम है, आपने कितने कप्स जीते हैं, ये सब ऑन द डे आई डोंट थिंक इतना मैटर करती हैं. व्हेन यू आर प्लेइंग T20 क्रिकेट, दोनों साइड्स ऑन द डे बहुत करीब होती हैं एंड एनीथिंग कैन हैपन. सो या द परसेप्शन इज डेफिनेटली चेंजिंग एंड यू आर द मैन लीडिंग दैट change and you are at the center of it. So for us to, and for people who watch cricket, for people who cover cricket, and you have also spoken about this a lot in your interviews, there needs to be proper, throughout the year we need to see teams, top tier teams, and then some teams that are not as experienced playing each other more often outside of just these big World Cups. How important do you think that is for the growth of the game? कि हम ज़्यादा मैचेस देखें besides only just a few games in the World Cup या even ये जो ट्राई सीरीज हो गई, but more frequent cricket between all the nations. So I think it's very important. So if you want next World Cup to be better than this World Cup, then it's very important that the top nations play the lower test nations and the associate nations, so that it's even tougher. Otherwise, वो gap बढ़ता ही जाएगा, and then the World Cups are not as interesting. Oh, absolutely. Or this could backfire, और वो बिल्कुल ही क्रिकेट ना खेलें ताकि the top team just keep going through, और कोई upset No ना one हो जाए wants और- that. You never know. What fun is that? Yeah. है ना? So I think ये fixtures होने चाहिए. Now, if Dipinder Singh Airi has not done what he did against England, would he be here at PSL? No. Correct. So that is how his country, his teammates will be represented through DP. Brian Bennett scored, well, he was unbeaten most of the time. He only got dismissed twice the whole World Cup. I mean, I genuinely feel like a World Cup आज से 6-7 माह पहले होता, so Brian Bennett would have picked up in a lot of franchise cricket as well. But had he not done what he did, क्या वो PSL में आता, would he be here? No. Correct. So now you got to understand कि यार, the people that are here have actually done well at the World Cup. If those guys are not there, and if the gap remains as big as it was in the past, then you'll see the same people in franchise cricket, and you'll see the same countries doing well, and the world cricket would only be interesting when the top nations play. And I don't know if I want to call that it will be interesting. I think it will actually be boring. Boring, that's So- the word. Boring. So I think it is very important for the growth of the game that the lower ranked test nations and the associate nations are also growing. The reality is they will never grow at the pace as the top nations growing, and I get that. It is okay. But as long as they're growing, slow and steady, but they are growing. They must grow for cricket to remain fun to watch, exciting, and also the other countries to keep producing more and more and more cricketers. एंड यू नो आज से 15-20 साल पहले ये जो आप एसोसिएट टीम्स या थोड़े से जो वीकर टीम्स की बात करें, आज से 15-20 साल पहले उनका
ग्रोथ का वो लेवल नहीं था जो आज है, बिकॉज दे आर प्लेइंग सो मच क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड कि यू कांट जस्ट सी देम एज ओ दे आर फ्रॉम अ वीकर टीम, बिकॉज दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर ऑलरेडी, एक तो दे आर फिजिकली फिट, they are mentally sharp, they are playing in leagues around the world, they are playing against quality bowling, so they're already so equipped with high pressure game. So अब वो gap जो कि आज से 15-20 साल पहले था between top team के players and lower team के players, वो gap अब बहुत कम हो गया है. You're right. I mean, to be honest with you, Roha, there is no answer to your question because you have summed it up really well, and I think it should stay that way. Roha, for us to लोगों के लिए क्रिकेट को एंजॉय करना और न्यू क्रिकेटर्स का प्रोड्यूस होना और क्रिकेटर्स का सम लोअर रैंक नेशन से प्रोड्यूस होना टू बी वर्ल्ड बीटर्स, उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो आपने अभी कहा, एंड I hope it happens. Although Pakistani fans are still recovering from that loss to USA, but we are pushing for the growth of the game, and of course इस तरह की performances बहुत ज़रूरी हैं, especially in World Cups, to show the world कि the game is globalizing, you cannot stop it, so you better embrace it and you better step up. So on that game, Roha, my request to Pakistani people are कि निकल आए उस losses से because आपने USA को देखा है, fine, I get it. Look at their squad, look where they're from, जो USA के, look how much cricket they have played in their respective countries of birth. So वो ऐसा नहीं है कि USA के लड़के आए and they are nobodies, they are somebody. They are actually very good cricketers. I mean, you're right. Shubham Ranjane was my teammate in recent ILT tournament. Harmeet was my teammate, and they both were doing well. Yeah. So please, I mean, it's a request to all nations, not just Pakistan. These associate boys are just, it's not like they're nobodies. They are somebodies. And the moment you put respect to them, you'll have a better game than what you had in the past. Absolutely. We cannot wait to see in the next tournament, in the next World Cup, कि कितना और exciting होने वाला है, because of these teams, I think the competition gets richer and it's better for us as well कि थोड़ी सी एक factor of unpredictability भी होना चाहिए. I think it's good for the game, it's good for everyone. एक और रोहा, Shayan Jahangir is here. Yeah. मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, but he was my teammate. If he gets few opportunities, he'll light it up. Wow. I hope he doesn't see this. No pressure. No pressure, Shayan. अच्छा, you know, Sikandar, you've played for so many T20 franchises. आपका cricket info page, it looks like कोई वो grocery list होती है ना कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. इतनी T20 cricket, इतनी franchise cricket. वो grocery list females की होगी, men की बहुत जल्दी finish हो जाती है. 3 चीज़ें होती है. Correct. बट सिकंदर, इतनी फ्रेंचाइज क्रिकेट आपने खेल ली है, अभी आप और भी खेलेंगे, ऐसा हाउ डू यू बिल्ड लॉयल्टी इन डिफरेंट फ्रेंचाइजेस? डज इट गेट अ बिट चैलेंजिंग टू समटाइम्स go from one team environment to the other team environment? How do you make that process seamless and, you know, how do you feel at home? Okay, so I think इसमें जो start होता है वो होता है owner से. The reason I say that, the owner treats you as a player or treat you as a commodity or treat you as a family or treat you as हाँ बस पैसे दिए, he must perform and he must go, that's it, मेरे पास time नहीं है, you know, there's a lot of things. So I think the first step of creating a family starts from the owner. ठीक है. And then he find players जो उसी का vision और thought process लेके start to work and build a family around him. But it starts with him, and then you have to find players. So I know I played the last year with, I know this question will eventually lead to Lahore, but I'll tell you another story. So I know I played the last season of ILT with Sharjah, but my first 3 years were with Dubai Capitals. So how we build a family in Dubai Capitals. So of course Ruchir is a owner. And when I got picked, he started calling me. हम लोगों की बातचीत start हो गई, and you know, you get a sense of he's a very nice human being. Anyway, we landed, So I'll tell you a story. So we have हमारे liaison officer थे बाला भाई. जब नमाज का टाइम था ना, he will remind me किसी की भाई अजान हो रही है, आपने अगर नमाज पढ़ ली है तो अभी नमाज पढ़ लें. And he's not a Muslim. But that is, I'm just giving examples. अब एक सर है हमारे, उनका नाम है वीनू सर. So we were in a hotel, तो उसमें होटल रूम में family rooms finish हो गए. And I only had a single room, but my family was coming. तो मैंने कहा वीनू सर, आपके पास स्टूडियो रूम है,
फैमिली रूम है, माई फैमिली इज़ कमिंग, आपकी फैमिली आ रही है? उन्होंने कहा नहीं आ रही। मैंने कहा सर वुड इट बी ओके इफ़ आई स्वैप रूम्स विद यू? रोहा उन्होंने कहा है तू बस एक काम कर, ये मेरे रूम की 2 कीज़ हैं, एक तू अभी रख, by the time we are going for training actually, by the time you come back I'll have everything's packed, make sure you go to your room, make sure you pack everything. That's Vinu sir. Wow. Now we had mom and dad of our coaches Hemang Pidani. तो मैं ऊपर एक रीमिक्स सुन रहा, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को तुझसे है प्यार. So I was just listening to that and my room was above him. Yeah. तो एक दिन मैंने नहीं लगाया, तो उनके मम्मी डैडी आ गए कि बेटा वो आप कल गाना से वो प्लीज़ दोबारा लगाया हम से. Sweet. That is how you build a family. The family is built by the hierarchy of a team and then the players come in. It's Right. not the other way around कि 4-5 दोस्त इकट्ठे हो गए and then you say कि yeah we are a family. It does not work like that. If the owner doesn't make you feel like a family, वो 4-5 दोस्त अच्छे हो सकते हैं but they will not be able to build a family. It will actually lead to fractions. वो 4-5 जब ये देखेंगे कि यार हमें तो वो रिस्पेक्ट मिल ही नहीं रही, या वो एक इन्वायरमेंट नहीं हो रहा, बस इट्स अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट और इसको प्रोफेशनली ट्रीट करते हैं, हम आपस में हल्ला गुल्ला करें, देन 5 इधर होंगे, 7 उधर होंगे, 3 इधर होंगे, 2 उधर होंगे. टॉप डाउन एक So वाइब this बनती है. family जो है लाहौर की, that is built by समीन भाई. And then उनको 10 साल, ठहर सोच के बताता नहीं, उनको 8 साल लगे to find the members, the core members of this family, to have complete core members of this family, and then he knows कि yes, I've got it. Wow, that's so beautifully So I wanted to give a described. background कि how a family is created. So that is how a Lahore Qalandar family is created. क्योंकि फैमिली एक मतलब आप अपनी खुद की फैमिली को मोस्ट ओकेजन्स पे व्हेन देयर बैक होम दे आर नॉट एबल टू ट्रैवल विद यू, तो आपकी यही फैमिली जिनके साथ आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक फैमिली वाली फीलिंग, अगर कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है विदाउट ऑब्वियसली नेमिंग एनी नेम्स कि वो फैमिली वाली फीलिंग डेवलप नहीं हो पा रही है एंड यू आर स्ट्रगलिंग इन अ फ्रेंचाइज एनवायरनमेंट, हाउ डू यू कोप विद समथिंग लाइक दैट? I'm okay being alone. यानी कि मुझे जब मैं अकेला होता हूँ I have no problems with that. So I'll Okay. just be in my room. मैं अपने रूम में बैठा रहूँगा and I'm okay with that. क्या मुझे- नॉर्मली आपकी रूटीन क्या होती है व्हेन यू हैव टाइम एंड यू नो कोई हॉबीज है, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू पास टाइम? I sit in my room and I'm okay with that. म्यूजिक सुनते हैं? हाँ वो भी सुन सकते हैं. सैड म्यूजिक? No. हैप्पी म्यूजिक? Yeah, I'm not a sad guy at अच्छा. all. So मुझे अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम किस नहीं तरह का म्यूजिक सुनते हैं? है. प्लेलिस्ट में अभी बता रहा था मैं, नुसरत फतेह अली साहब तो ज़रूर होंगे. जबरदस्त. देन अगर पोइट्री का दिल कर रहा है तो फिर अलामा इकबाल साहब होंगे, फराज अहमद फराज होंगे, जॉन एलिया होंगे. जबरदस्त. उसके बाद अगर दोस्त वगैरह रूम में आ गए या मूड है कि चलो कुछ पंजाबी सॉन्ग्स और उर्दू के आजकल के काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, सो यू लिसन टू दोस. पाकिस्तानी म्यूजिक सुनते हैं? या अभी रिसेंटली वो पाकिस्तानी सिंगर है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जिन्होंने गाया इश्क आवे छड्डिया. So I was listening to him. Yeah, so I was listening to him. आई थिंक इट्स किसी ड्रामे का OST है, बट एनीवे हाँ यू राइट, लाइक बड़ा अच्छा म्यूजिक आ रहा है, और अगर आपको ऐसे लोग मिल जाए जिनके साथ आपका म्यूजिक टेस्ट मैच हो रहा है, वो बात ही और है, Correct. वाइब भी और है ना, फिर Correct. आपकी वाइब सेट हो गई है. Correct. यहाँ इस लाहौर की टीम में किसके साथ आपका म्यूजिक का वाइब सबसे बेस्ट सेट हुआ है? अब्दुल्ला के साथ है. यार अब्दुल्ला तो बाय द वे ही आल्सो सिंग्स हिमसेल्फ, हाँ. तो वो करते हैं जैमिंग वगैरह करते हैं आपके लिए, या वो वाला अगर सिंगर है रूम कि में अगर मैं रूम में अकेला हूँ और मैं उसे कहूँ तो कर देगा. वैसे नखरे हैं अगर नहीं, क्योंकि नॉर्मली सिंगर्स जो प्रोफेशनली नहीं गाते वो इतना कंफर्टेबल नहीं. आई थिंक अब्दुल्ला लोगों में कंफर्टेबल नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. एंड लोगों को लगता है कि ये एक बहुत बैड क्वालिटी है, ये ही इज़ एन इंट्रोवर्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. अब्दुल्ला कम बोलता है भाई, वो कम बोलता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं, वो ज़्यादा, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. हमें बस इस सोसाइटी में वी हैव टू लर्न, बल्कि उर्दू में कहता हूँ, हाँ. हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हम लोगों को एक्सेप्ट करें उनकी उन क्वालिटीज़ के साथ जो उनमें है या जो वो है, ना कि उनको अपनी तरह बदलने के लिए कोशिश करें. अब्दुल्ला दोस्तों में काफ़ी बोलता है जिन पे वो ट्रस्ट करता है, जिनके साथ उसका कंफर्ट लेवल है, एंड इट्स ओके. सो या अभी तो हमारे पास उसामा भी है. सो उसामा के साथ भी, आसिफ अली के साथ,
हम लोगों का हमारी एक रूटीन है लेट नाइट वाली, तो इसमें हम लोग ये सारे बैठे होते हैं। अभी तैयब ज्वाइन इन हो गया, जबरदस्त। तो So, जैमिंग होती है, म्यूजिक होता है। हल्का सा लगा के देन वी प्ले सम गेम्स, चाहे वो Right. कार्ड गेम्स हैं, चाहे बोर्ड गेम्स हैं, चाहे क्रिकेट कॉन्वर्सेशन है, चाहे लाइफ Are you कॉन्वर्सेशन। yourself artistic या poetic? Would you call yourself an artistic आई एम person? डेफिनेटली नॉट आर्टिस्टिक इन एनी फॉर्म ऑफ आपके वर्ड शेप। म्यूजिक टेस्ट तो it says otherwise. बट आई एम नॉट, वो मैं किसी की आर्टिस्टिक को नेचर को एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी अपनी कोई नहीं है। अच्छा, तो आप कंज्यूम बस करते हैं Yeah, गुड आर्ट yes. एंड अप्रिशिएट करते हैं। Appreciate from distance good art, yes, or in any form. That's it. नहीं, बट हैव यू एवर लाइक written anything or performed anything? Yeah. Codes. Okay. जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था, Codes. that's as far as I'll go. इससे आगे कुछ इससे नहीं। ज़्यादा राइटिंग नहीं। नहीं बस। अच्छा, ज़बरदस्त। बट खैर आई थिंक व्हेन यू स्पेंड सो मच टाइम विद अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, तो होता है ना ग्रुप में लोग असाइन हो जाते हैं, अच्छा ये बंदा जो है ये म्यूजिशियन है, या ये ही इज़ द टीम क्लाउन जो कि बस जोक्स क्रैक करेगा, टीम का इन्वायरमेंट लाइन करेगा। तो व्हाट इज़ योर टीम पर्सनैलिटी लाइक व्हाट डू पीपल एसोसिएट यू विद? So I'll cut that question in दो पार्ट्स में इसको Okay. बता दूँ। पहली बात तो मैं उन लोगों के साथ एसोसिएट करता हूँ जो मेरी तरह मेंटली नम है, ना उनमें कोई आर्टिस्टिक नेचर है, ना मेरे में कोई आर्टिस्टिक नेचर है। अब्दुल्ला में थोड़ी सी है, हाँ। myself, उसामा, आसिफ अली, तैयब ताहिर, वी आर मेंटली ना, हमारे में क्रिकेट के अलावा कोई टैलेंट नहीं है। अब्दुल्ला हैज़ दैट। सो पहली बात तो मैं अपने आप को एसोसिएट उनसे करता हूँ जो मेरी तरह मेंटली डम तो नहीं कहूँगा, लेकिन नम है। ज़्यादा आर्टिस्टिक नहीं नहीं है, बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं। में। नहीं, हम लोग सिर्फ हल्ला मजाक अच्छा। वगैरह और वो ठीक होगा। है। और सेकेंडली आपका क्वेश्चन था अबाउट, यू आस्क मी समथिंग जिसमें Yeah, व्हाट पीपल एसोसिएट हाँ, आपका लेबल क्या है टीम में? बिलीव मी, जो भी सबसे उल्टा लेबल होगा, अगर इधर फखर आएगा तो वो देगा, अब्दुल्ला नहीं दे सकता, उसामा भी नहीं दे सकता, जूनियर है मेरे से। फखर जो मेरे से सीनियर हारिस आएगा वो भी देगा। इफ यू गिव देम ऑप्शंस, और उसमें से जो सबसे फजूल टैग होगा, वो सच हो या झूठ हो, वो ये मुझे मिलेगा। सो दैट टेल्स यू, टेस्ट करना पड़ेगा हमें। कर लीजिएगा। सो दैट टेल्स यू। अच्छा, नो, बट आर यू द person people come to when they are looking for advice, or you're someone who would just say something funny to lighten up the mood? क्या I think क्या रोल है आपका? Okay, I think as a senior guy, and of course by being the captain of Zimbabwe, आपको ये skill learn करनी पड़ती है कि there's a time to crack a joke and there's a time to actually give him a serious advice when he needs one. हाँ, So I think I do both. जब and I'm sure like आसिफ अली को, कल रात हम बैठे हुए, आसिफ अली को मुझसे डांट पड़ी। ओह, मैंने कहा जितना आसिफ भाई आपका अल्लाह ने आपको बाइसेप दी है, उतनी मेरी टांग है, एंड यू आर स्टिल लुकिंग टू स्कूप। आसिफ भाई हो क्या रहा है इधर, आधा भी लगेगा तो आपका 6 हो जाएगा, हमें तो इतनी जोर से घुमाना पड़ता है। और वो देखा है हमने। हाँ, तो लेकिन ये मैंने आपको बहुत रिस्पेक्टफुली और पोलाइटली समझाया, उसको मैंने ऐसे नहीं कहा, बट वो समझ जाएगा कि मैंने उसे कैसे कहा। सो उस टाइम पे इट वाज टाइम टू क्रैक अ जोक, टू मेक हिम रियलाइज कि एक मैसेज भी डिलीवर हो गया हमारा कि आसिफ भाई ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, देयर इज अ टाइम एंड प्लेस, और जोक भी हो गया। लेकिन समटाइम्स सीरियस भी रहना पड़ता है कि समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन एंड वी हैव टू टैकल इट अ बिट मोर सीरियसली। On your development as a player and on becoming the number 1 T20 all-rounder in the world, describe that feeling and describe that emotion कि ये कभी milestone आपके लिए personal आपने set किया हुआ था, or did they just happen? How did you feel? How did you process it when it मेरे वालिद साहब ने मुझे ये कहा था, उन्होंने कहा था कि आई वाज नंबर 3 or 4 in T20. In T20 and ODI I was 3 and 4. Whether it was 4 and 3 or 3 or 4, but in दोनों फॉर्मेट्स में मैं 3 and 4 पे था। हाँ, तो माई फादर कैजुअली सेड इट, उन्होंने बड़े कैजुअली मुझे कह दिया कि पुत्र अल्लाह करे तू किसी एक फॉर्मेट में नंबर 1 बन जाए एक दिन के लिए, एंड आई जस्ट वांट टू फ्रेम इट। मैंने बस वो तस्वीर फ्रेम करानी है। ही सेड इट कैजुअली, आई डिड नॉट, मैंने उसको कैजुअली नहीं लिया, एंड आई थिंक आई नीडेड, देयर वाज समथिंग, देयर इज अ स्विच, समथिंग स्विच्ड, एंड आई सेड कि बड़ा ही कम होता है कोई बाप अपने औलाद से कुछ मांगता है। नॉर्मली तो वो देते ही हैं अपनी औलाद को, always giving, and being a father I can see it. So उन्होंने casually कहा, and I didn't take it casually.
दैट वाज दैट। फिर अल्लाह ने दोनों फॉर्मेट में बना दिया। जबरदस्त। And then सो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि मैंने वर्ल्ड नंबर 1 बनने को इतना एंजॉय किया जितना मैंने इस चीज़ को एंजॉय किया कि मेरे वालिद साहब खुश हो गए होंगे और वो तस्वीर फ्रेम करा लेंगे, उनकी ख्वाहिश थी। सो आई थिंक आई एंजॉय दैट। how important, Sikandar, do you think individual player rankings are in today's cricketing landscape when, as we discussed, कि जो gap है वो teams के दरमियान इतना कम हो चुका है and the emphasis is getting more on winning games and making your team get trophies. How important are these personal milestones for players now, you think? Well, so first of all, let me create a scenario for you and then I'll answer. Any culture that glorifies individual brilliance over team winning will always breed selfish cricketers. अब ये अब आप I don't know क्योंकि because I'm not in Pakistan, I can only talk about Zimbabwe. So मुझे नहीं पता कि ये आपके सिस्टम में या दूसरों के सिस्टम में है कि नहीं, but I have seen enough cricket to know that any culture that glorifies individual brilliance or performances over teams winning will always breed selfish cricketers. So individual rankings are important, but Roha, did you achieve that by trying to win the game for the country? Were you looking to do all the right things for your country and ended up losing, but still you get ranking points? I get that. Are you taking your country forward? Then it matters. But अगर आप वर्ल्ड नंबर 1 बन रहे हैं या बने हैं and then the country is losing respect या rankings नीचे आ रही हैं, then to me it's alhamdulillah fine, you enjoy, but वो जो एक real sense of feeling है of pride and कि मेरे मुल्क and my teammates can walk 30 feet tall next to me now, वो then I don't know, I don't think so you can get it. एक कलेक्टिव फीलिंग जब तक नहीं होगी तब तक वो इंडिविजुअल फीलिंग का क्या मुझे ऐसा लगता है that's who I am, लेकिन everybody is different, but that's me. Yeah, I think I get what you're saying. और अब ये sentiment I also feel like on a personal level कि ये ज़्यादा common होना चाहिए, but Sikandar, look at who are the world number 1s currently, who are the world number 1s or 2s and 3s, क्या ranking होगी, who are there? It's all about taking your team forward, but at the same time now I want to prove this point with a theory कि ये सिर्फ मैं सोचता हूँ कि does it actually work. I think ranking में हार्दिक तो है, I know that. So I think Azmatullah is also in Azmat number 1 in ODI yes. So Afghanistan has done well in ODIs, am I right? Yeah, I mean it's such a big thing for them also कि उनका player तो आया because उनकी history इतनी ज़्यादा नहीं है, so उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है. Yeah. क्योंकि people have to understand कि where did Afghanistan start from. Yeah. So they must respect Afghanistan for cricket team, that is कि उनका एक लड़का एक बच्चा वर्ल्ड नंबर 1 बना, राशिद वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर बना. I only look at all rounders. Yeah. So Rashid world number 1 बना, but are they winning games? They are. So अगर तो आपकी country is winning games and respect आपको मिल रही है, then it's worth it. Such a beautiful answer. ज़बरदस्त. And now I'm going to ask you a question जो कि I know आपसे बहुत लोगों ने already पूछ लिया होगा और I also kind of know आपका क्या जवाब होने वाला है, but फिर भी आप पूछेंगे. फिर मैं पूछूंगी. Correct. But just now that you're reflecting, I know that आपने भी कहा था कि Zimbabwe cricket has given you that identity in cricket and because आपकी भी इतनी strong association बन गई हुई है. But do you ever think about that what if scenario if you had stayed in Pakistan and if you had pursued cricket in Pakistan? कभी आप उस बारे में अब सोचते हैं कि पाकिस्तान खेल लिया होता? Oh no. नहीं? No. उसकी वजह and I want to clarify this. मुझे यानी कि कभी ये पोस्ट आए और कभी कोई वीडियो नज़र आ जाए, पीपल आर उर्दू में बल्कि कहते हैं पीपल पाकिस्तान को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी बुरा भला कह रहे होते हैं कि ये टैलेंट ज़ाया कर दिया और ये कर दिया, सिकंदर ने अच्छा किया जो मुल्क छोड़ दिया, ऐसे हो गया. रोहा, मैं पाकिस्तान में क्रिकेट खेला ही नहीं हूँ, सो ये हो ही नहीं सकता कि पीसीबी ने मुझे वेस्ट कर दिया. पीसीबी मुझे वेस्ट कैसे करेगी जब मैं उनके सिस्टम में नहीं था, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र में बाहर चला गया था और मैं क्रिकेटर बनना भी नहीं चाहता था. एज इन के मेरा ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था.
फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी एजुकेशन थी। वो तो ग्रेजुएशन के दौरान मैं क्रिकेट क्लब क्रिकेट स्कॉटलैंड में खेली और एक साल लीव ली अपने, वो गैप ईयर जिसे हम कहते हैं ना, एंड आई वेंट बैक टू जिम्बाब्वे, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई डिड ओके। फिर मैं वापस चला गया स्कॉटलैंड, वो अलग स्टोरी है। लेकिन इस मेरे जिम्बाब्वे से क्रिकेट खेलने में पाकिस्तान और पीसीबी का, उनको उनको आपको बुरा नहीं कहना चाहिए, बिकॉज मैं कभी भी आपके साथ नहीं था एज अ क्रिकेटर। एंड आई थिंक जिनको क्रिकेट की नॉलेज है या जिनको थोड़ा बहुत अपना होमवर्क करना है, वो ये होमवर्क कर सकते हैं करेक्ट खुद से। करेक्ट दे कैन पुट 2 and 2 टुगेदर। But, सो नहीं, yeah. उसकी वजह से जब मुझे फ्रॉम द ग्राउंड जिम्बाब्वे ने बनाया, देन मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया कि व्हाट इफ मुझे पाकिस्तान बुला लेता, या मैं पाकिस्तान चला जाता, या मैं पाकिस्तान से ओके व्हाट इज द गारंटी अगर मैं इधर होता तो खेल जाता। कोई गारंटी नहीं है करेक्ट, बिकॉज obviously. यू डोंट नो, और you're talking about what ifs and buts here. कोई गारंटी नहीं है। सो मैं तो बल्कि आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा ऑन कैमरा, जो आपके बच्चे और सीनियर और जूनियर्स और जो भी कोई क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान में, प्लीज़ उनके लिए दुआ करें और उनको सपोर्ट करें। उनको सपोर्ट करें, उनको ज़रूरत जिनको वो है आपके मुल्क को support रिप्रेजेंट की। करेंगे। यस, आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन सम कैपेसिटी, क्योंकि आई वाज बोर्न हियर। आई मीन क्रेडिट टू जिम्बाब्वे, एंड आई से दिस इन इंग्लिश, Zimbabwe has always said that he's a Pakistani born Zimbabwean cricketer, and they have no problems with that, क्योंकि they know where I was born and they're okay with that. So others mustn't try and take away the Zimbabwean side of me away, क्योंकि Zimbabwe has no problem. थोड़ा सा हम अब आपके साथ एक गेम करना चाहते हैं, जस्ट टू लाइक test you, not test you, but like kind of know how do you rate all rounders जो अभी currently खेल रहे हैं. So I'm going to give you 2 names और आपने उनमें से एक पिक करना है. This game is called Pick the Greatest T20 All-Rounder of All Time. Okay. So I'll give you 2 names. आपने बस एक पिक करना है and it will go on and on. Okay. Ready? Ready. Okay. It is, by the way, this game is never as simple as it looks. ये जब edit होता है ना, जो Yeah, साथ no. वो टिक 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 No. टिक. But we want to see your picks, and of course, I'm Okay, this sure is people want to franchise know. or international? नहीं, it's international. International, then I get it. right? ठीक है. Right. Starting with the best right now, Sikandar Raza or Hardik Pandya. Hardik Pandya. Hardik Pandya or Saim Ayub. Hardik Pandya. Hardik Pandya or Aiden Markram. Hardik Pandya. Hardik Pandya or Glenn Maxwell. No, Maxi doesn't bowl much in internet. So Hardik. Right. Hardik Pandya or Jason Holder. Hardik for international. Pandya or Sam Curran. Sam, no, Hardik, because Sam hasn't played a lot of T20 internationals. Okay. Pandya or Mitchell Santner. Oh, I love Santner. And he's a spinner. Hardik. Right. Okay. Hardik Pandya or Mohammad Hafiz. Hardik. Hardik Pandya or Dwayne Bravo. International. Yeah. Because they both have got 2 World Cups now. So for me, DJ had an edge. DJ. Because I feel like he was the first one who changed the face of all-rounder finisher sort of a thing. So I like people who actually change the game. Right. Champion. No, okay, not the singing part. Not the singing part. DJ, not the singing part. Okay. Bravo or Shakib Al Hasan. DJ. Bravo or Yuvraj Singh. Yuvraj didn't bowl a lot, so DJ. Okay. DJ Bravo, Mohammad Nabi. DJ. Bravo or Pollard. Can I say DJ's bowling and Paulie's batting? Or do I really? नहीं, एक पिक करना है. DJ because he bowled a lot. Okay. Yeah. Fair. ठीक है. DJ Bravo और शाहिद अफरीदी. Shahid Bey's got 1 World Cup. And yeah. DJ's got 2, so DJ. DJ Bravo or Shane Watson.
DJ because I feel now अब लोगों को now people are starting to understand that it is tough to finish games, extremely tough. Everybody wants to bat up the order. Not that opening is easy part, but people are starting to understand that DJ was ahead of his time. Okay, So DJ. makes sense. Lastly, जी, DJ Bravo और Dre Russ? Because now they both were good fielders in their prime. है They ना? both were good Kept power. the best for the last. They were both good power hitters. They were both equally good. Well, I think Dre had a bit more power. DJ because his dancing was better. So he, Dancing, proper all-rounder yeah, abilities. proper है ना? all-rounder. हर Yeah. जगह पे. So for me, DJ. For So- international cricket, best all-rounder. DJ Bravo, greatest T20 all-rounder of all time according to Sikandar Raza. Correct. Zabardast, well played. Sikandar, you're talking about PSL and थोड़ा सा pivot करते हैं conversation को अब. I know ये भी आपको सवाल आपने बहुत दफ़ा आंसर किया होगा, but today just a bit more reflection on what do you think makes the PSL different or what makes it stand out in comparison to other leagues? You are probably the best person to ask this question because you have experience of playing around the world. ऐसा क्या है PSL में that draws you back every year? So I am different because my roots are here. So, you know, I would always be drawn back to the soil. दूसरे लोगों के लिए क्या है? It would, believe it or not, it actually would be the people. And one might say कि वो कैसे? Cricket standard तो हमें बाकी लीगों में भी अच्छा मिल सकता है. And some leagues का or 1 or 2 leagues का standard आपसे अच्छा भी है. I think it's the love of the people, the fans. क्योंकि when we are here, there's not a lot of movement that we do anyway. So it's the love and hospitality and the warmth of the people that we receive. I think that what draws us back as overseas players. But हाँ, यहाँ पे जब आप होते हैं, तो do you feel like an overseas player or do you feel like a local player? उसामा मीर मेरे रूम में बैठा हुआ है, कहता है यार सिकंदर भाई हमने ओवरसीज हमारे कब आएंगे? मैंने कहा यार डैनियल सैम कल आ रहा है और रुबिन हरमन उसके बाद आ रहा है. और कहता है यार हम 2 ओवरसीज से खेलेंगे. मैंने कहा कैसे? कहता है वो फिज. हाँ मैंने कहा हाँ. तो कहता है ईमॉन. तो मैंने कहा वेल्ला लगे. कहता हाँ 3 यानी कि तीनों खेलेंगे क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 3 की है. तो मैंने कहा मैं. वो कहता है यार आपको तो मैं भूल गया. सो दैट्स योर आंसर. सो उसामा जो हु इज क्लोज टू मी, हाँ. उसे नहीं पता मैं ओवरसीज हूँ. सो आई थिंक हूँ मैं ओवरसीज हाँ. नहीं, लेकिन मुझे देखा नहीं जाता एज एन ओवरसीज. फील नहीं किया कराया जाता या फील वो बात थॉट आती नहीं है माइंड नहीं में. आती. अच्छा, when you are interacting with your teammates and with everyone else, is Urdu your preferred language या is it Punjabi या is it English या एक जो हमने अपनी देसियों ने अपनी एक बीच की ज़बान बनाई हुई है जिसमें जब दिल करे इंग्लिश का वर्ड, उर्दू का वर्ड, पंजाबी नहीं का नहीं word? नहीं नहीं. सो डिपेंड्स वेयर आई एम. समीन भाई के साथ विल बी इंग्लिश, सॉरी उर्दू. अच्छा. ओवरसीज जब लड़के मिलते हैं जैसे डैनियल सैम एंड वेल्ला लगे इज देयर नाउ एंड देन वी हैड अदर ओवरसीज द लास्ट टाइम. सो इन द टीम मीटिंग्स दे विल बी इंग्लिश. और जो मेरे दोस्त हैं ना उनके साथ पंजाबी. और पंजाबी अगर तो आप मैंने गालियाँ देने तो डेफिनेटली पंजाबी, सो दैट दे फील इट एंड दे गेट इट. मदर टंग. मदर टंग. ज़बरदस्त. पंजाबी, आई थिंक आपने इंटरव्यूज भी दिए हुए हैं कुछ, एंड यू ऑल्सो रिप्रेजेंटेड पंजाब Yes. किंग्स इन द IPL. टॉक टू मी अबाउट दैट एक्सपीरियंस. कैसा था वो उस फ्रेंचाइज के साथ और वहाँ के लोगों के साथ एक्सपीरियंस खेलने का? लोगों का पहले बताता हूँ. दे एब्सोल्युटली लव्ड मी एंड ओन्ड मी इन अ वे. मैं अपने टीममेट्स के बता रहा हूँ. पंजाब में हम जब बाहर गए हैं तो उन्होंने बड़ा रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया. लेकिन मैं आपको हमारा एक दोस्त था जेसी. मैं उसके घर गया, यानी कि हमारी सिर्फ एक बॉन्डिंग होगी. देखिए घर इज़ अ वेरी प्राइवेट प्लेस. नॉट एवरीबडी, कोई भी किसी को बस मुंह उठा के घर इन्वाइट नहीं कर सकता. सबसे पहले तो आई डोंट नो व्हाट ही सॉ, व्हाट ही थॉट. इवेंचुअली हमारी दोस्ती बहुत अच्छी होगी एंड ही इन्वाइटेड मी होम. उसकी दादी मुझे अभी भी मैसेज करती है. हाउ स्वीट. और I love to somehow play that sometime, some other time. लेकिन वो यही कह रहे हैं कि बेटा आपका जब दिल करे आप आए. एंड देन उनके घर पे चाय वगैरह होती है. देन अर्शदीप, उसकी वेरी ब्यूटीफुल स्मॉल फैमिली है. उसके घर हम लोग गए.
उसके मम्मी डैडी सिस्टर एंड अर्शदीप खुद था. वी हैड फूड, वी हैड चाय. वो कह रहे पुत्र तू बोलता रहे कि हमें ना आपकी पंजाबी सुनने का मज़ा आ रहा है. मैं कह रहा हूँ नहीं अंकल आप बोले मुझे आपकी पंजाबी सुनने का मज़ा आ रहा उनकी किस तरह की पंजाबी? है. वो उनका डायलेक्ट आई थिंक वो मेरे से हो नहीं पाएगा. मैं Try जस्टिस तो कर नहीं करें. पाऊँ, नहीं हो पाएगा. लेकिन मुझे उनका मज़ा आ रहा था, उन्हें मेरा मज़ा. आप अच्छा अब आप अपनी पंजाबी थोड़ी डेमोन्स्ट्रेट करें हमारे लिए. उनकी कैसी है नहीं मैं आपको आई हैव टू सर्च दैट. आप अपनी करें ना. आप खुद कैसे पंजाबी बोलते हैं? रोहा वॉच द गेम क्लोजली और हमारी मीटिंग देखें, आपको ज़रूर नज़र आएगा कि मैं पंजाबी कैसे बोलता हूँ. अभी बोले Um, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रो आई थिंक यू लीव इट. podcast रोही करूं. आप रहने दे, मैं अकेला कर लेता हूँ. पॉडकास्ट की कोई रो आपसे पंजाबी तो बहुत नहीं अच्छी है. है. रो तो मेरी बोले आपसे ना. तो अब उसका कोई क्वेश्चन होना चाहिए. अच्छा मैं कर रही हूँ आपने मुझे चुप करा दी. मैं कर तो रही हूँ पंजाबी में. ब्रोकन मैं बताती हूँ. ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਖਾਇਆ? ये जो एक्सप्रेशन था ना ये हमारा जाएगा जूम इन पे, ये प्रोमो में यूज होगा. रोहा आपका जो क्वेश्चन था ना, अगर मेरे दोस्त ने पूछा होता तो मैं आंसर भी ना देता कि उठ इधर से या उर्दू में बात कर इंग्लिश में कर. मैं तो इससे बोल रही हूँ कि आप भी कुछ साथ दो लफ्ज पंजाबी लेकिन ये मैं आपको एक बात बताता हूँ रोहा, ये पंजाबी बोली जाती है दोस्ती में, जब एक गैंग आया होता है, जब तो एक आप माहौल बना होता है. आप मेरे पॉडकास्ट पे आए हुए हैं, हम 3 घंटे से तो हम बात कर रहे हैं अभी तक. लेकिन आप वो अगर vibe कहेंगे नहीं कि आ रही. हमारी पंजाबी is a दोस्ती vibe. नहीं है पंजाबी ये is a तो vibe. बहुत अफसोस की बात है यार. पंजाबी इज अ वाइब. पंजाबी ਤੁਸੀਂ ਬੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੱਟਾ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. बिल्कुल कर रहे हैं. बड़े अफसोस की गल है. रोहा थोड़ी पंजाबी सुन के ना यकीन नहीं हो रहा. चले एनीवेज ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਟ ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. करेक्ट. एनीवे नहीं बोलिए आप तो पंजाबी, पर हम आपका कोई क्लिप लगा के जरूर इस पे जरूर एडिट कर प्लीज देंगे. आप जरूर कीजिएगा. मुझे लग रहा है आप इसलिए नहीं बोल रहे बिकॉज इट्स नॉट वेरी गुड. रोहा वॉच माय क्लिप्स मुझे लग रहा है. प्लीज वॉच It's माय giving- मेरी पंजाबी के क्लिप्स देख लें और आपको खुद ही जब आप वो क्लिप्स देखेंगे ना तो आप खुद ही कहेंगे कि अच्छा हुआ सिकंदर ने पंजाबी सानू की पता. पंजाबी नहीं बोली. सानू की पता. एनीवे चले. अच्छा हम आईपीएल के बारे में बात करते. व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन सम ऑफ दोज ग्राउंड्स जहाँ पे लोग इतना पैशनेटली इंडिया में क्रिकेट को फॉलो करते हैं. अब चेन्नई जैसे ग्राउंड में आप चेन्नई को हरा रहे हैं, वो कैसा था एक्सपीरियंस उस तरह का? अनबिलीवेबल. चेन्नई क्राउड उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेडियम, द लेआउट ऑफ इट इज़ ब्यूटीफुल. उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन रोहा इट वाज वन ऑफ द नॉइजिएस्ट क्राउड. रियली आई डोंट नो वो कैसे था, वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से और वो और के लोग जेन्युइनली लाउड थे, बट इट वाज द नॉइजिएस्ट क्रिकेट स्टेडियम. वाओ. सो चेन्नई में खेलने का बहुत ही मज़ा आया. और फिर ऑब्वियसली धोनी की जो अपनी वहाँ पे फैन फॉलोइंग है, व्हेन ही Correct. कम्स आउट टू बैट इट्स डेफिनिंग. इट इज़ डेफिनेटली, यानी कि वी फेल्ट इट. यानी कि हम लोग एक दूसरे को हंस रहे थे कि या कि यू नो हम लोगों ने तो सुना था, लेकिन जब आपने उसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया देन यू से या द स्टोरीज आर तो एक दूसरे की आवाज़ आ रही थी. नो नो नो. आईपीएल में आपको एक दूसरे की आवाज़ नहीं आती, आप बस इशारे देख रहे होते हैं. अच्छा. या Signs पढ़ रहे होते हाँ, हैं लेकिन दूसरे. ये कि विदाउट कंपेयरिंग कजाफी में भी जब हो रहा था फाइनल एंड ऑल दैट, आवाज़ वहाँ पे भी नहीं आ रही थी. हर कजाफी में किसी मैच की नहीं आती, एंड इट्स ट्रू. इट्स ट्रू. स्पेशली विद द न्यू स्टेडियम आउटलुक, हाँ. क्योंकि इट फील्स लाइक कि फैंस हमारे और करीब आ गए विद द न्यू स्टेडियम आउटलुक. हाँ वो जो स्ट्रक्चर सा एक बन गया है, तो डेफिनेटली. आरसीबी में मैं खेला नहीं था, लेकिन वो भी लाउड था. हाँ. वांकड़े इज लाउड, या इवन अहमदाबाद आई हर्ड जब लेकिन लोग अहमदाबाद कहते बड़ा बहुत है. सो हाँ. इट्स लाउड, लेकिन वो उस तरह ऐसे नहीं लगता कि इट्स क्लोज, ऐसा लगता नहीं है. लेकिन अहमदाबाद हम लोग गए थे, लखनऊ में भी हम लोग जीते थे. हाँ. देयर जस्ट अ लॉट ऑफ पीपल, और यानी कि बहुत ज़्यादा लोग उधर आते हैं. टू सी 100,000 पीपल Yeah. शेयरिंग देयर टीम, और उसमें आप अगर जीते तो फिर उसका और मज़ा आता है. And what city in India did you like exploring? या did you develop a connection with? पंजाब, Uh-huh. क्योंकि पंजाब वाज क्वाइट. हाँ. I enjoy my quiet towns. पंजाब was quiet. पंजाब में कहाँ पर थे आप? चंडीगढ़ ज़्यादा टाइम चंडीगढ़, था? we were in चंडीगढ़. और उसके अलावा अगर मुझे चाय अच्छी लगी थी तो वो लखनऊ की. हाँ, लखनऊ वाले they're known for their food एंड देयर वे ऑफ टॉकिंग, उनके जिस तरह वो बात करते हैं, आदाब एंड दिस एंड दैट, उनसे बात करके बड़ा मज़ा आता है. उनकी मुझे लगता है कि वो जो उस साइड की उर्दू स्लैश थी वो बड़ी मज़े की थी. अच्छा, बिकॉज हम अभी क्राउड और उसकी आप बात कर रहे थे और आपने वो फाइनल भी याद कराया लास्ट सीजन का. सिकंदर, जितनी बात उस फाइनल पे हुई थी अबाउट द मैच इटसेल्फ, उतनी या शायद उससे ज़्यादा बात या जो हेडलाइन वर्दी
उस चीज़ की उसका एक एलिमेंट था, वो ये था कि यू फ्लू इन, यू वर प्लेइंग अ टेस्ट मैच इन इंग्लैंड, यू फ्लू इन, व्हाट वाज इट, आवर्स और जस्ट मिनट्स बिफोर द टॉस, and you made your way to the ground. You played in that match. You won the match. आखिरी आपने winning runs भी आपने ही लगाए थे. You were just the right man at the right time doing the right job. अब मैं I want to know how much of that was pre-planned, because obviously test match you didn't know when it was going to end. So how did that come about? So Roy, it can't be pre-planned because Yeah. हमारा the test match था, and unfortunately the test match, or fortunately for Lahore, the test match finished early. So I remember taking a walk around the field to thank the Zimbabwean fans and the English fans who were supporting Zimbabwe, and I was walking with Craig. I said, Craig, do you think my phone is ringing and Lahore wants me back? And he said, it's definitely ringing. So I said, you know what? I'm actually not going to see my phone. If it's meant to be, it will happen, but I'm going to soak up this applause because we came to England after 20 odd years. Yeah. I don't know if I have another test match in me Yeah. in England. I don't know if me and you are going to be together for another test match in England. So let's just enjoy each other. Wow. And let's take a moment. So it took us 50 minutes just to take a round, and we were thanking and taking pictures. And as I sat on my chair, Craig मेरे साथ ही बैठता है, तो मैंने क्रेग से कहा कि डू यू थिंक माई फोन इज रिंगिंग, एंड ही इज ऑन द फोन, मैं अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहा अभी. कहता है हाँ इज रिंगिंग. एंड एज आई टर्न अराउंड, समीन भाई मिस कॉल, शाहीन मिस कॉल, एंड एज आई एम थिंकिंग कि चल लेट मी ओपन द मैसेज एंड सी व्हाट दे आर सेइंग, समीन भाई कॉल्ड, एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी यू ऑल नो, कि बस जल्दी कर. शाहीन तो कहता है टिकट भेज दी है, जल्दी कर. दुबई से कह रहे हैं दुबई पहुँच, वहाँ से फ़्लाइट अभी नहीं मिल रही लेकिन दुबई पहुँच. दैट वाज द फर्स्ट केस कि दुबई से आगे की फ़्लाइट हमें लाहौर की नहीं मिल रही, लेकिन तो दुबई पहुँच, जब तक तो दुबई पहुँचेगा इन दैट्स 7-8 आवर्स, यू नेवर नो समथिंग माइट कम अप. मैंने कहा ठीक है. So you took that flight to Dubai not knowing कि वो फ्लाइट लाहौर की आपको मिलेगी या नहीं. हाँ, तो दुबई से नहीं मिली और थी. उस दिन फाइनल था. करेक्ट. तो दुबई से मिली भी नहीं थी फ़्लाइट. फिर दोस्त को कॉल की, वो Yeah. अबू धाबी लेके गया, Wow. फिर वहाँ से फ़्लाइट ली. Wow. लेकिन आई वॉज नेवर प्रेजेंट एट द ग्राउंड फॉर द टॉस. नो. Wow. So 7 o'clock is a toss, but 7:52 is flight landed. हाँ, उनको बता दिया गया था कि फ़्लाइट लैंड कर गई है, कि यानी कि मैं अंदर ही हूँ. Oh wow. बस so And उस फ्लाइट में अबू धाबी से लाहौर, what was going through your mind? Did you rest? Did you eat? What did you no, do? I think I passed out. कुछ Okay. खाया तो ज़रूर होगा, but I think I slept for an hour or two. ठीक है. I think it's a 3-hour 40 minutes flight, something Yeah. like that. Yeah, I think I slept in that flight. Okay. और कुछ फिर भी नहीं लैंड करना था. करते ही सीधा ग्राउंड. Yeah. मैं ना होटल का नहीं, stop वो आप अगर आप वीडियोस भी देखें तो उसमें हैंड लगेज मेरे साथ ही है. So straight to action. लेकिन बड़ी मज़े की बात है कि चेंज रूम का जो कज़ाफ़ी का गेट है ना, वो गार्ड ने बंद कर दिया था. तो जब हम लोग आए हैं तो हम लोग कह रहे हैं खोल, वो कह रहे हैं नहीं कहीं और जाओ. तो मेरा लेजन ऑफिसर ने कह रहा है कि चाचा प्लेयर आया. तो फिर हमारे साथ जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि गेट खोले. तो फिर चाचा जी ने कहा आप अपना हाँ. आप होंगे अपने घर में भी, मैं तो ड्यूटी हमें ये पे कहा हूँ. गया था कि गेट बंद कर दे, तो गेट बंद है. तो दैट वाज नाइस. Wow. And how relieved were the Lahore players, especially Shaheen and Sameen and everyone on the team, because a final is such a big day, the adrenaline already itna high hai. What was that? Did you have any communication with them right before the match के क्या बातचीत हुई आपसे उनकी? कि मैं रास्ते में हूँ. That's it. The last message would have been हाँ जहाज में बैठ गया. Wow. That's it. बाकी सब understood था कि बस आप आ रहे हो और आप समीन भाई ने ये कहा था कि यार तेरे बगैर जीतने से बेहतर है कि हम तेरे साथ हार जाए. That's what he said. Oof. That is beautiful. So it was basically that कि it's better to have you That's with us कि beautiful. अगर हम हार भी गए सिकंदर, it's okay. I'd rather have you than to win without you. That's what he said. And the rest is history. Yeah. One of the best cricketing stories of recent years, I think. And to hear it back from you, it's an absolute pleasure. Thank you. And thank you for giving us that story you. and that glorious turn of events. आप लाहौर fan हैं या नहीं हैं, it doesn't matter. Everyone enjoyed watching you and जितनी I think commitment not आपने show की. not everyone. Not everyone. Correct. Do you want to talk about that? No, I'm okay. Let's talk about that. I mean, without obviously going too much into it, but there were comments. There was a comment from Imad Wasim that, you know, perhaps
money was a motivating factor कि आप इतनी लंबी जर्नी करके आए. What would you like to say to that? So, Robin, when you've asked me to come on, आप एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि मैं जो भी सवाल करूंगी वो ऑनेस्टी के साथ, एंड दैट शुड बी द केस. इफ आई डोंट स्पीक, अगर मैं आप मुझसे बात करेंगे और मैं आपको जवाब नहीं दे रहा और आप मुझे जानती नहीं, हाउ वुड यू नो कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आई एम और हु आई एम? योर वर्ड्स बेसिकली टेल्स हु यू आर. सो somebody send me that clip. I honestly, मुझे वाकई उसके से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको एक जॉब के लिए पेड किया गया, यू टू शेयर योर ऑनेस्ट ओपिनियंस. सो मैडीज ओपिनियन वॉज ऑनेस्ट व्हाट ही थॉट. नाउ कुछ लोगों के लिए कुछ डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं, राइट और रॉन्ग. कुछ के लिए रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ के लिए पैसे इंपॉर्टेंट है, कुछ के लिए नेम इंपॉर्टेंट है, कुछ के लिए फेम इंपॉर्टेंट है. व्हाटएवर योर प्रायोरिटीज आर, so everything circles around that. So now some fraction of people, उनके लिए money important है. ये ना आप डिसाइड कर सकते हैं ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि is it right or wrong. या हमारी अपनी प्रायोरिटी, कुछ के लिए इज्जत इंपॉर्टेंट है, कुछ के लिए नाम इंपॉर्टेंट है, कुछ के लिए फेम इंपॉर्टेंट है. आई डिडंट हैव एनी, मुझे उस आंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स हु यू आर एज अ पर्सन. आपने अपनी ऑनेस्ट आंसर दिया, वेल आपको देना भी चाहिए, बिकॉज आपको यू आर बीइंग पेड फॉर अ जॉब. But you think it doesn't reflect who you are, yeah, it doesn't reflect the entire honest truth. अगर मैं आपको ये बताऊं, जो मैचेस हमने मिस किए थे उसके पैसे काटे गए थे, बिकॉज इट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट. सो नो, मनी डज नॉट come into my side of who I am. But if it's your opinion, then it's your opinion. It doesn't change me because it's not true about me. Or agar something is not true about me, then why should it bother me? Right, we're going to play this or that with Sikandar Raza. We're going to put him on the spot and Again. see what he picks again. Acha ji. Ready? Ready. Batting first or chasing under pressure? Chasing under pressure. Okay. Winning the match with a six or by taking the last wicket? Both. I'm an all-rounder. Nahi na, this okay, or that. Winning the last. Winning it with the bat, whatever that With is. the 4, six, 6, okay. whatever. Get hit on the head with a bouncer or face Mike Tyson in the ring? Get hit on the head by a bouncer. Right. Okay, share a room with Fakhr Zaman or Shaheen Afridi? The only reason I'm picking Shaheen Afridi is because the other option is Fakhr Zaman. That answer is so loaded. Yeah. ठीक है. Fakhr bhai would understand why I'm saying that. But why? No. The game is this and that. There's no why This there. or that. No why. Yeah. आज सिकंदर भाई होस्ट बन गया. अच्छा. Super over or a last ball thriller? Last ball thriller. Really? हाँ, Super over नहीं enjoy? No, because Lahore Qalandar has done plenty of last ball thrillers. Ooh. Take a hat trick or hit 6 sixes? 6 sixes. Okay. Face peak Shoaib Akhtar or peak Wasim Akram? Fake an injury on that game. That's so. Wasim Akram, I think Wasim bhai wouldn't be as nasty as Shoaib bhai. Shoaib bhai. Peak Wasim Wasim bhai Akram. आगे से swing करके out कर देंगे, वो मंजूर है. हाँ. शोएब भाई जो है वो कुछ भी. शोएब भाई थोड़े इम्तिहान लेंगे ज़्यादा. Right. Okay. But having said that, every ex-cricketer I spoke to said that Wasim bhai was an artist. No doubts about that. अच्छा जी, no chai for life or no coffee for life? No coffee for life. Easy. चाय के बगैर नहीं. Get stuck in the lift with Abdullah Shafiq or Haris Rauf? आप दूसरी ऑप्शन ना भी देते तो अब्दुल्ला शफीक. Why? Well, that was a गपशप लगती रहे, लिफ्ट जहाँ मर्जी जाए ऊपर नीचे. yeah. As soon as you said get stuck in a lift with Abdullah Shafiq, I was about to say yes, but you quickly said Haris Rauf. अब कोई भी होता तो अब्दुल्ला ही था. हाँ, बड़ी यारी, बड़ी दोस्ती. अच्छा जी, would you rather never bat again or never bowl again?
Bowl. Because the game is called this and that. हाँ नहीं. Or rather not bowl. अच्छा bowl. I thought you said both. No, It's no, like bowl. bowl. So you'd rather not bowl again, but batting is your Yeah. पहला प्यार. ये कह It's सकती हैं batting. आप, yes. जबरदस्त. Okay, well played. Thank you. You are really good at this game. आप ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहे. ज़बरदस्त है. अच्छा. Quickly अब एक फास्ट bowlers वाला भी करते हैं. You have to defend सिकंदर 14 runs in the final over of a T20. Which pacer would you pick to do the job? Gidi or Naseem Shah? Gidi or Naseem? Gidi. Gidi or Arshdeep Singh? Arshdeep. Arshdeep or Hazelwood? Last over में Arshdeep. Arshdeep or Muza Rabbani? Arshdeep. Arshdeep or Harry? Harry. Harris Rauf or Hardik Pandya? Last over. Harry. Harris Rauf or Lockie Ferguson? Harry. Harris Rauf or Rabada? Last over. KG. Rabada or Pat Cummins? Pat. Pat Cummins or Sam Curran? Pat. Pat Cummins or Shaheen Shah Afridi? Pat. Pat Cummins or Jasprit Bumrah? Jasprit. There you have it. Well picked. ज़बरदस्त. अच्छा सिकंदर लास्ट अब हमारे जो सेगमेंट होता है पॉडकास्ट का वी जस्ट वांट टॉक टू यू अबाउट द लाइटर साइड ऑफ लाइफ एंड जितनी मैंने आपसे भी कॉन्वर्सेशन किया आई फील लाइक यू हैव दैट वेरी एक यूनिक और एक नीश सा सेंस ऑफ ह्यूमर दैट डजंट लाइक कम अक्रॉस इन अ वेरी जेनेरिक वे लेकिन स्पेसिफिक सिचुएशंस में आप बहुत फ़नी हो सकते हैं. इज़ दैट ट्रू? अब्दुल्ला से पूछना पड़ेगा या उसामा से या जो मेरे करीबी हैं उनसे. आई डोंट नो हाउ दे परसीव इट. फ़खर हाँ ये बता सकता हूँ कि फ़खर भाई देखिए को हमारे नहीं लगता. बहुत पैसे लग जाएंगे अगर हम अब्दुल्ला को और उसामा और इन सबको बुलाएंगे तो आप ही जरूर. बता दें. नहीं आप जरूर बुलाएं. दे मस्ट अर्न. ओहो दोस्त हो तो ऐसे. अच्छा लेकिन आपका सेंस ऑफ ह्यूमर किस तरह का है? लाइक हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेंस? किस तरह के जोक्स आप इंजॉय करते हैं? डू यू वॉच कॉमेडी मूवीज? डू यू वॉच अ लॉट No, ऑफ no, I don't. टिकटॉक्स Oh no, रील्स? Oh, reels at times. Okay. वो भी इसलिए कि मुझे अब्दुल्ला काफ़ी मज़े की और उसामा काफ़ी मज़े. हमारा एक ग्रुप है. अच्छा. तो हम एक दूसरे को भेजते रहते हैं. Oh, So okay. reels to some extent, no, not TikToks, no. बट आपने खुद ही कहा ना कि सोशल मीडिया आप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते Yeah. हैं तो ज़्यादातर फिर आपका टाइम इसी तरह गुजरता है. हाँ लेकिन अब्दुल्ला क्या गपशप करेगा कि व्हाट्सएप पे वो रील भेज देगा. So then I'll watch it. लेकिन not just him, there's other as well. हमारा अभी जो पंजाब के कुछ दोस्त हैं पंजाब किंग से we share reels as well. There are there some humor. लेकिन ये है कि हमारा आपस में बात करके ज़्यादा टाइम गुजरता है ना कि फ़ोन्स पे ज़्यादा टाइम गुजरता है जब हम साथ होते हैं लाहौर में. और लाइक गेमिंग वगैरह का शौक है टीम में? अभी लाहौर की टीम में लाइक हाँ पूल FIFA पे वगैरह. काफ़ी होता है. अच्छा. और वो हैंड हॉकी है फुटबॉल जो भी वो कहते हैं उसे. क्योंकि आप लोग इतना टाइम ऑब्वियसली होटल के अंदर गुजार रहे हैं सो No, हमारा डज इट gaming गेट room- बोरिंग? No. One thing I can assure you, Roa. 8th floor at PC is never boring. That's where Ooh. Lahore Qaland is at. I can assure you that. वाह Never. नेवर बोरिंग. Never. अच्छा हु आर द आपने अब्दुल्ला उसामा अपना तो बताया बट इन द टीम हाउ इज फ़खर जमान इन द टीम? वीव सीन प्लेंटी ऑफ हिज कंटेंट यू नो बीइंग वो वैसे उस तरह से इतने फ़नी नहीं लगते लेकिन जब बिहाइंड द सीन्स आप उनको देखते हो ही इज़ वेरी एक्सप्रेसिव वेरी फन ऑलवेज pulling everyone's like how is that like being with him sharing the dressing room with him? An honor. From a serious point of view, an honor. Yeah. Fakhar is one of the finest human beings you'll see. Yeah. उन्होंने कुछ I mean not that I'll share here but you can tell that he's one of the finest. Clean intentions for everyone. Wants everybody to do well. Not just लाहौर में वैसे भी जब उनसे बात हो रही हो एंड सेंस ऑफ ह्यूमर जो बिहाइंड द सीन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है ना. सो हमारा ना हम लोग सबसे एंड पे बैठते हैं बस में. इट्स अब्दुल्ला मी फ़खर भाई एंड आसिफ अली. Yeah. लास्ट ईयर और इस साल भी हम 4 हैं. अब हम लोगों ने नए स्टूडेंट्स हायर किए हैं जैसे उसामा मीर है तैयब है. सो फ़खर भाई को हम लोग कहते हैं फ़खर भाई आप यूनिवर्सिटी के डीन हैं ओए हम आपके डिसाइपल्स हैं हमें आज लेक्चर दें. फिर हमें फ़खर भाई ज़िंदगी पे एक लेक्चर देते हैं. उफ डीप लेक्चर. नहीं वैसा वाला नहीं लेकिन वो मैं कैमरे बता नहीं सकता. सो फ़खर भाई वो जो बैक ऑफ द बस हमें लेक्चर मिलते हैं वी रियली अप्रिशिएट. बस जबरदस्त. लेट्स लीव इट एट दैट. फ़खर भाई बस इतना ही बताऊंगा. लेकिन वो टीम के सीनियर अपने आप को क्योंकि वो इतने सालों वो से जो लेक्चर्स देते हैं ना senior उसका सीनियरिटी से कोई लेना देना नहीं.
That's all I would say. That's all. The full वैसे video will be out ये soon. बड़ा अमेजिंग ट्रेंड है सबको गोल्ड आईफोन्स एंड ऑल ऑफ दैट बट ऑब्वियसली इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द कल्चर दैट यू ट्राइंग टू कल्टिवेट कि प्लेयर्स को ये फील हो कि दे आर अप्रिशिएटेड एंड दे आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली सो इट्स अ ग्रेट थिंग I think gifts are important. I think the good thing is कि Samin bhai thought of a gift rather than a monetary Yeah. कि वो पैसे दे देते. I think that would not have motivated us as much as the phone because this as much as it's a phone but it is when you win a game and it's to the best fielder. So ऐसा नहीं है कि आप हारेंगे तो you have to win a game and it's to the best fielder of that day of the game. So that is why this means something. Like you've earned it. Yeah, it has a symbolic It has value. a symbolic meaning to it. So जबरदस्त. I was just saying to someone कि कल हम खैर वो तो शायद मैं प्राइवेट ही से कह रहा था आई थिंक बस आसिफ भाई के साथ हम लोग क्योंकि हम इकट्ठे हुए थे मैं उन्हें कह रहा था मैं कहा आसिफ भाई अगला मिलेगा ना आईफोन मैं आपको दे दूंगा कहते नहीं यार मुझे लेना मैं कहा आसिफ भाई ले लो क्योंकि आपने फील्डिंग से नहीं जीतना मेरा चांस लग जाएगा सो दिस इज अ ह्यूमर वी हैव तो अच्छा। आई वाज जस्ट टीजिंग हिम नहीं। so that's how we motivate one another अब मैंने आसिफ को कहा ना आई नो आसिफ अब कहेगा कि मैं पुत्र तुझे जीत के दिखाता हूँ क्या So बात that's है how, you कितने know- लेयर्स पे थिंकिंग हो रही है Yeah, so that's अच्छा how we मेरी plant भी a seed. सिफारिश कर दें समीन भाई से देखें लाहौर से गिवन द बात- फैक्ट दैट आई आल्सो स्टार्टेड विद लाहौर कलंदर्स और ये बात जब मैं उनसे मिलती हूँ वो और आते भाई मुझे याद कराते हैं तो भाई देखें लाहौर में सिफारिश नहीं चलती बस कर ऑन दें एवरी लेयर अच्छा चले मैं खुद करूँगी हाँ जरूर खुद रिक्वेस्ट करूँगी ज़रूर, मैं ज़रूर। ज़रूर मिले मुझे भी इनग्रेव हुआ हुआ। अच्छा सिकंदर क्योंकि हम पाकिस्तान के प्लेयर्स के आपकी जो आपका बॉन्ड है विद लाहौर के प्लेयर्स वो तो हम सब जानते हैं वी सी इट एवरी ईयर बट हु आर द अदर प्लेयर्स इन द पाकिस्तान टीम दैट यू होल्ड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड आपका एक अफेक्शन एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है फॉर एग्जाम्पल विद बाबर what kind of a relationship do you have with the current players like Babar? सो ऊपर से आते हैं और फ़खर भाई हो गए साहिबजादा बिकॉज वो हमारे साथ लाहौर में था हाँ एंड देन उनके साथ हो गया फिर आपके नंबर 3 पे बाबर बाबर से ऑन अ क्रिकेटिंग फील्ड वी एक्चुअली स्पीक यानी कि अच्छे तरीके से मिलते हैं ऑफ द पार्क अगर हम लोग जैसे ट्राई सीरीज में आए थे वी हैड अ स्मॉल चैट तो यानी कि आई थिंक देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड वी स्पीक टू वन अनदर ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जिससे मैंने बात नहीं की है उससे मुझसे नहीं की होगी सो फिर रिजवान आता है रिजवान भाई से भी क्योंकि रिजवान भी मेरे साथ कराची में थे व्हेन आई फर्स्ट केम फॉर PSL आई वाज विद Karachi कराची Kings सो रिजवान भाई एंड आई आर क्लोज right उसके बाद आगा एंड आई आर क्लोज यानी कि हम लोग बात करते हैं इन श्रीलंका वी आर कैप्टन्स डे सो वी वर टुगेदर फॉर द होल डे yeah एंड देन जब हम लोग ट्राई सीरीज में भी आए ही वाज अ कैप्टन सो वी एंडेड अप डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर सो सलमान आगा एंड आई आर क्लोज yeah हम लोग काफ़ी यानी कि मजाक एक दूसरे को भी कर लेते हैं उसके राणा जी ऑफ कोर्स राणा राणा जी जी। एवरग्रीन राणा जी इज अ फाइन ह्यूमन बीइंग उनसे भी हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती है पर आई थिंक दैट इज़ डाउन टू बिकॉज जो अब्दुल्ला के करीब हुआ था देन आई गॉट क्लोज टू हिम बिकॉज Yeah. वी वर हैंगिंग आउट टुगेदर फॉर PSL उसके बाद जो सर्कल में आते गए नवाज भाई इफ देयर इज वन फनी गाय इन द टीम oh god ही इज एलीट वो अपनी कैटेगरी में खुद है Sikandar do you know how many players have come on this podcast and said the exact same thing जिनसे भी हम पूछते हैं who is But- the funniest लेकिन in वो the team ही इज everyone नॉट ट्राइंग says टू बी it. फनी यही बोलते हैं सब लेकिन नवाज भाई इज नेचुरली God we have to get Mohammad Nawaz on the podcast yeah so It's- but everyone what a says- gentleman what a lovely guy but किस तरह का उनका नहीं that is believe that is नवाज भाई स्पेशलिटी क्योंकि आई डोंट थिंक कोई वो हमारे दूसरा सामने- हो ही नहीं सकता जस्ट टू डिलीवर वो नवाज भाई है लेट्स लीव इट एट दैट Okay. anybody I've missed Shaheen and I are the closest as you know And what about the younger players? Like Saim Aya hai, he's such an exciting player. Do you think Pakistan में even the likes of Babar, पाकिस्तान में fans की शायद वो patience नहीं है to give this exciting player time to settle down and to really play their natural game. Even Babar Azam has been at the receiving end of so much criticism. I mean, what are your thoughts on that? I'll answer about Simon and I have met and I have shown love to him and he has shown respect back so alhamdulillah वो जो एक professional वो है हमारा भी relation है and of course जो एक because we come from the same culture वो उसमें दोस्ती और वो जो होना चाहिए वो भी है so regarding your second question
पर्सनली आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर. उसकी वजह ये है, रोहा मैं इधर हूँ नहीं. आई डोंट रीड अ लॉट. आई डोंट नो व्हाट फैन सेज. आई डोंट नो क्या परसेप्शन किसके बारे में बन रहा है. All my energy is But do you agree, do you believe that Babar Azam is the biggest talent Pakistan has produced in the last many years in terms of the global impact that he has created and where he can go and where he can take that talent? I think not a cricketer, but certainly the finest batsman Pakistan has produced in recent times, and I think fans must never forget that. कि बाबर हैज़ ब्रॉट रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन टू पाकिस्तान. नॉट दैट पाकिस्तान की रिकग्निशन नहीं थी, लेकिन उसको कैरी भी तो करना होता है. अब आपके जो लास्ट क्रिकेटर्स चले गए उसके आगे किसी ने आके उसको कैरी भी तो करना है. आई थिंक बाबर इज सर्टनली वन ऑफ देम. लेकिन उसमें फ़खर, शाहीन, दीज गाइज हैव प्लेड अ मैसिव रोल. दीज गाइज, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग क्योंकि इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हर मैच ही जिताएं, तो और यहाँ आपको लगता है कि इन 3-4 जो आपके फेवरेट्स हैं यही जिता देंगे. जब वो नहीं जिताते देन यू जस्ट गो बॉन्कर्स. कि सारा मलबा इन्हीं पे डाल दिया जाता है. क्रिकेट इज नॉट वन बाय मे बी T20 टू वेरी लिटिल एक्सटेंड वन मैन शो हो सकता है. बट क्रिकेट में a lot of the components needs to come together. Right, and because you belong to a Butt family, Yes, आपका खाने पीने के ऊपर थोड़ी बात करते हैं. बहुत हो गई है क्रिकेट, नो वन केयर्स. खाने, रोटी के बारे में बात करते हैं. खाने के बारे में बात आप अपने लिए कर रही हैं because you're a butt. भूख लग रही है. Correct. ठीक है, ये वैसे रियल है, ये वो प्रॉप्स वाले नहीं ठीक है, है. सो फील फ्री. बट खैर, पहले मुझे ये बताएं, बीइंग फ्रॉम अ बट फैमिली, व्हेन यू मूव्ड टू जिम्बाब्वे, वहाँ पे आपको देसी खाने की याद आती थी? व्हाट वुड यू डू देन? वालदा, अल्हम्दुलिल्लाह. घर का खाना. घर का खाना. वालदा थी, अल्लाह का शुक्र है, तो वालदा ही घर में. I've never up until I was in Lahore. क्योंकि लाहौर में हम लोग बाहर जाते थे. पहले मैं PF में था तो हॉस्टल लाइफ थी, तो हम लोग बाहर नहीं जाते थे. तो वहाँ पे जो मेस में बनना था हमने वही खाना था. लाहौर में मैं आया तो वो जो 2 साल थे उसमें मैंने लाहौर के खाने काफ़ी इन्जॉय किया. आफ्टर दैट आई स्ट्रेट अवे वेंट टू जिम्बाब्वे. वो भी 1 साल बाद ही चला गया था, लेकिन मुझे वापस आना पड़ा टू फिनिश माई ICS. अच्छा. तो 2 साल मैंने लाहौर में गुजरे. ओनली देन कि मैं बाहर से खाने खाता था. अदरवाइज आई ऑलवेज बीन अ इंडोर इन हाउस फूड सॉर्ट ऑफ. जिम्बाब्वे की क्यूजीन कैसी है? वहाँ का खाना डिस्क्राइब करें. Roha, I say that on record. Zimbabwe has the best beef in the world. Yeah. Ask any cricketer Okay. who's been to Zimbabwe to come onto your podcast. Please write that down. Ask them about how, if he's been to Zimbabwe, say there was a potential claim Okay. by Sikandar Raza. Unverified sources. अच्छा, Sikandar. No, by Sikandar Raza, that he says Zimbabwe has the best beef. Please, and the T-bone and the rumsteak. Ask them what they say. Oh, wow. मैं तो अब I guarantee you. स्टेक खाने का प्लान. Guarantee you. अच्छा, so the beef in Zimbabwe, according to Outstanding. Sikandar Raza, best in the world. Best in the world. और क्या है वहाँ की cuisine में? Is it all of like rice या? No, we are a sadza, which is bread? No, sadza. Okay. It's a sadza. What is that? Roha, that's your homework. Google sadza. When I'm gone. Spelling बताएं. SADZA. हाँ. हाँ. And Okay. then we Zimbabwean people eat sadza, nyama, murivo. Okay. That is sadza meat vegetables. ये भूख लग गई है. But तो they're अब tasty. हमें. I actually have twice a week. I have अच्छा. sadza, nyama, murivo twice a week. और फिर यहाँ पे जब आप आते हैं लाहौर, तो फिर आपको लाहौर कलंदर्स की हॉस्पिटैलिटी आप इंजॉय करते हैं. Yeah. Who's the biggest foodie in the team? फखर भाई, वो जब Yeah. वीडियो बनती है वो खा रहे होते हैं. जब हमारी पोस्ट मैच वीडियो बनती है फखर भाई खा रहे होते हैं. आप लास्ट 4 सालों का रिकॉर्ड देख लें. अच्छा. अल्हम्दुलिल्लाह. खा रहे होते हैं हर वक्त. अल्हम्दुलिल्लाह. वैसे यहाँ पे जब आप आते हैं when you're with the team, तो where do you like going? I know आपकी मोबिलिटी थोड़ी लिमिटेड होती है, बट रूम 865 से 864 क्योंकि वो अब्दुल्ला का है. That's where I like to go. आपने इस पॉडकास्ट में अब्दुल्ला का बहुत मेंशन किया. आई थिंक हम काउंट करने वाले हैं क्योंकि आपकी दोस्ती इतनी गहरी है, तो आप आई एम श्योर उनको याद कर रहे हैं. तो आप प्लीज़ उन्हें कहें वो भी हमारे पॉडकास्ट पे ज़रूर आएँ. ना, अब ये अब्दुल्ला खुद डिसाइड करे. खुद डिसाइड करे because I want also. I think he must decide for himself. Abdullah Shafiq Yes. will be our guest on the next Please. podcast. I would because actually watch सिकंदर that. रज़ा को आपने मुझे होमवर्क दिए, मैं भी आपको 2 होमवर्क देती हूँ. Okay. एक आपने समीन भाई से मेरे आईफोन की रिक्वेस्ट करनी है, हम और एक सिफारिश आपने. किसी भी लेयर पे एक्सेप्ट नहीं करते. वो तो मैं समीन भाई से मैं कौन सा पहले player रिजेक्ट हूँ? कर दिया. पहले ही रिजेक्ट कर दिया हमने.
इतनी अथॉरिटी समीर भाई ने हमें दी हुई है। I thought we were getting to know Yeah, each other. लेकिन You're good friends. हाँ, लेकिन you said family, loyalty, so you know वो बनती कैसे है? Honesty, integrity। हमने सिफारिश लाहौर में चलती नहीं है। और मुझे लगता है आप ये वो वाली क्लिप से अभी तक आपने ना मेरे टुवर्ड्स जो है ना आप I promise you, नहीं, मैं आपको genuine बता रहा हूँ। चले ठीक है, पंजाबी चले भी मैं आपने नहीं बोली। मैं ये कह अच्छा, दूंगा चले- समीन भाई, उन्होंने ये कहा था, मैंने ये कहा था, प्लीज अब आप टाई अप कर ले। I'll do that, I'll send you a message। अच्छा चले पंजाबी में थोड़ा सा एक मैसेज अपने फैंस को दे दें। जो पंजाबी बोलते हैं ना, दे वुड नो कि रोहा को ये बात समझ में नहीं आ रही कि पंजाबी एक वाइब का नाम है, एक उस ग्रुप का नाम है जिसमें यार दोस्त बैठे होते हैं और फ्रीली बात कर रहे होते हैं। मुझे ये लग रहा है कि सिकंदर की पंजाबी अच्छी नहीं है और वो ये- इसलिए बार बार डॉज ये- कर रहे हैं ये पंजाबी जब बोलना। क्लिप देखेंगे ये समझ जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਹੌਲਾ ਲਾ ਬਹੁਤ ਕੁਵਤ ਖੁਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਯਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ हाँ ਕਰਕੇ हाँ 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 नो रो you're right। एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, एटलीस्ट मैं रोहा good job कर रही हूँ। job। फिर अरबी बोलूँ, मुझे आती है वो भी बोल लेती हूँ। अना कलम अरबी शोई शोई यो यो वो बेहतर है। शुक्रान सिकंदर। इंता खत्म हो गई आपकी इंता तशरीफ lie on our podcast. Thank you very much। Thank you। That is very nice of you. Anyway, I hope that you had a good time and wish you best of luck for this season. No, Lahore Qalandars are absolutely on a roll. They've been on a roll for 4 years now, 5 years. They've unka linearly आप उनका देख रहे हैं progression, and it's just a pleasure to watch you as part of this Lahore Qalandars side. You've gelled in together, and you do not give off the feeling that you're an international player, but at the same time You mean an bring overseas? in You mean an overseas? Maybe Overseas. international feeling आपको आ रही होगी, overseas की नहीं आ रही। overseas. Yeah, रोहा। overseas Yes, की thank feeling नहीं आ रही, but at the same time आती भी है because of the experience that you bring. So you are the best package, you know, Okay. the best of both worlds. Okay। अच्छी हो गई तारीफ। Thank you so much, No, Sikandar. thank you। Honestly speaking, I've enjoyed the podcast, the search, the questions. It wasn't Joe normal, you know. Looks like you did your homework, so it was nice. Thank you very much for all the effort you put into this podcast. Thank and you. I absolutely loved being here। Thank you for taking the time out and wish you all the best Thank for you, ma'am। this season. And I'm sure, I hope कि आप लोगों ने भी आज का podcast enjoy किया हो with none other than Sikandar Raza. But watch him in action in this HBL PSL season 11 representing Lahore Qalandars once again. Thank you so much for watching. Make sure that you subscribe to Crickwick's YouTube channel and that you follow us across all social media platforms. अपना बहुत ख्याल रखें. Goodbye.